Assalamualaikum dear students, hope you all are fine and we all are wishing for you good health. So we are back with our new phase of e-learning on our Zoom app. So students, what you have to do, first of all you have to mute your mics so that the voice would be clear to you, and then you have to mark your attendance in the chat box. If you want to answer questions, then you can ask questions at the end of the lecture, or you can send message in the chat box. So log in with your own name instead of the name of your phone or any other name. Log in with your own name. So we are going to start unit number 1, social studies. Unit number 1, and the topic is the geography of the Muslim world. That what is meant by the topic? What do you mean by the Muslim world? Muslim world means those countries whose government has declared that they are the Islamic states. There is the majority of the Muslims over there. For example, we can say that this, Iran, Saudi Arabia, Iraq, Turkey, these are the Pakistan, these are the Muslim states, Muslim countries. The Islam is the second largest, starting from the history, that is, the Islam is the second largest religion and the fastest growing one in the world. The graph below, you can see the graph over here. This graph shows that there about the percentage of the religions in the total world population. Buddhism 6%, Hinduism 14%, Muslims 21%, Christian 33%. Means the largest growing religion is Christianity, and then others, और इसके अलावा जो बाकी मज़ाहिब हैं वो 26%. So the Muslim world stretches about 15,000 km east to west and 6,000 km north to south. इस्लामिक ममालिक जो हैं वो 15,000 किलोमीटर मशरिक से मगरिब की तरफ फैले हुए हैं, और इसी तरह 6,000 शुमाल से जुनूब की तरफ. Inside this vast region there are bound to be many differences, but the whole area is bound together by faith in Islam, the Prophet and the Quran. आपकी बुक में जैसे कि मेंशन किया गया है, बेशक उनमें बहुत सारे इख्तिलाफात होंगे या बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से वो बाउंड होंगे, लेकिन तमाम मुस्लिम उम्मत जो है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो कैसे यूनाइटेड हैं, वो इस्लाम की वजह से यूनाइटेड हैं, और वो सब किस चीज़ पे बेस करते हैं, द आइडियोलॉजी उनकी सेम ही है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्नत. So next in this chapter you will going to learn about the physical features of the Muslim world. Physical features से क्या मुराद है? Means the mountains, regions, rivers, sea falls, vegetation, वहाँ पे जो फसलें हैं, वहाँ की पैदावार, नबातात, वहाँ पे कितना % जो है वो बरामदात. इसके अलावा फिजिकल फीचर्स में आ जाता है माउंटेन, हिल्स, हिल रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज. तो यहाँ पे जो बुक पे आपके पेज नंबर 2 पे 2 मैप शो किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसमें आपको बाउंड्रीज के बारे में बताया जाए डिफरेंट कंट्रीज की. और नेक्स्ट इज द मैप शोइंग फिजिकल फीचर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और उसको डिफरेंट कलर्स में शो किया गया कि लैंड बिलो सी लेवल और लैंड अबव सी लेवल, सतह समंदर के बिल्कुल पास और सतह समंदर के ऊंचाई पे, जैसे कि पहाड़ी इलाके जो हैं उनको वो है लैंड अबव द सी लेवल. वो ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, जैसे कि 4,000 माउंटेन एरियाज जो होते हैं वो होते हैं ज्यादा ऊंचाई पे, दैट इज 4,000, 5,000, 3,000 मीटर अबव. सो इसको और आप ये देखिए पॉलिटिकल मैप शोइंग द मुस्लिम वर्ल्ड. जो फर्स्ट वन मैप है इसमें इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको ग्रीन कलर किया हुआ है, और so that it would be clear, officially there are 55 countries whose Muslim population is from more than 50% to 100%. So officially क्या है, ऐसा है कि 55 कंट्रीज से ज़्यादा जो हैं
वहाँ पे पॉपुलेशन 50 से 100% मुस्लिम्स की है, और अदरवाइज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल अदर कंट्रीज। और इसके अलावा दुनिया के दूसरे ऐसे ममालिक हैं, जैसे कि अगर आप ले लें यूएसए, दैट इज नॉट द मुस्लिम स्टेट, बट वहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं। इसी तरह आप ले लें यूके ले लें, वहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं। So the first one is the main mountains are the Atlas Range in North Africa, the highlands of Ethiopia, Yemen and southern end of Saudi Arabia, eastern Turkey and much of Iran. तो फिजिकल फीचर्स में खदोखाल जो पाकिस्तान जो मुस्लिम वर्ल्ड के खदोखाल है, उसमें आपको इन कंट्रीज में जो सबसे ज़्यादा जो मेन माउंटेन्स हैं वो एटलस रेंजेस है। द हाईएस्ट रीजन्स ऑफ ऑल आर, और सबसे ऊंचाई पे जो है इन इलाकों में वो आते हैं हिंदुकुश एंड कराक्रम माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। हाउ फ्यू पीपल लिव इन दीज माउंटेनियस एरिया रीजन्स, और बहुत कम ही लोग हैं जो इन माउंटेनियस रीजन्स में रह रहे हैं। द नेक्स्ट मैप शोज दैट मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर मलेशिया में भी मुस्लिम्स जो हैं वहाँ रह रहे हैं, लेकिन except for Malaysia, Indonesia and some parts of Africa has very little natural vegetation. अब हमने माउंटेन रेंजेस के बारे में बात की, नेक्स्ट हम इन फिजिकल फीचर्स में बात करेंगे। वहाँ पे जो पैदावार है, वहाँ पे जो नबातात उगाए जाते हैं, वेजिटेशन है, वहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह जो की जाती है, दैट इज वेरी लिटिल। वहाँ पे कुदरती तौर पे बहुत कम है। मोर देन हाफ ऑफ द होल एरिया इज कॉल्ड डेजर्ट। आधे से ज़्यादा जो है वो तकरीबन मुकम्मल सहरा है। कुछ जो है मतलब सेमी डेजर्ट्स हैं, मतलब कम है, और कुछ जो है वो बिल्कुल ही हम ले लेते मॉडरेट टेम्परेट रीजन्स हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्लोब ऑल्सो, इट विल बी क्लियर टू यू that the Muslim countries, that there is Pakistan, Iran, Saudi Arabia, Yemen, these are the Muslim countries surrounding near the Pakistan. So in these desert areas, apart from few oases, little or nothing grows except very tough plants which can survive in such harsh conditions. अब आपकी बुक में मैप से नेक्स्ट पेज पे जो है एक मैप दिया हुआ है, वो ये बता रहा है द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। लुक एट दिस नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, डिफरेंट कलर्स में शो किया गया है। ब्लू कलर शो कर रहा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, देन ग्रीन कलर शोज द मिक्स्ड फॉरेस्ट, दिस कलर शोज द deciduous forest, and then same is tropical, subtropical dry forest, tropical rain forest, tropical grasslands, temperate grasslands, semi-deserts and stuff, hot deserts, temperate desert, high altitude vegetation, tundra, marsh and swamp, and then ice caps. मतलब different regions show करें, vegetation regions जहाँ पे where the life is possible और जहाँ पे plants जो है वो grow कर सकते हैं। वो that is the natural vegetation of the Muslim world showing in this map. And in the map showing the physical features, हर एक को different colors में इसलिए किया गया ताकि आप लोगों को clear हो जाए कि 5000 मीटर above जो है वो कौन से हैं, then 4000, 3000 और 2000 मीटर above जो है sea level वो कौन से countries हैं। So next is the these can provide food only for the hardiest sheep and goats. अब जहाँ पे desert areas में जहाँ पे बहुत कम crops हैं और वहाँ पे बहुत मुश्किल से ही कोई पौधे वगैरह उगते हैं, या फिर वहाँ पे जो है ये कैक्टस जो है पौधा वो उगता है, which can survive in such harsh conditions. These can provide food only for the hardiest sheep and goats, usually kept by nomadic or semi-nomadic people who wander with their flocks. और वहाँ के इलाकाई जो लोग हैं वो रखते हैं अपने पास लेवर्ड वगैरह, और देन वो उन्हीं को लेके फिरते हैं चरागाहों में इन सर्च ऑफ पास्टर्स, चरागाहों की मतलब तलाश में, ताकि वो अपने जानवरों को फीड कर सकें। सो दैट दे कैन लिव। यस प्लीज। जी बेटे मैप का बता रही हूँ, और वो भी ये जो नेचुरल वेजिटेशन वाला जो मैप है इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, जिसमें डिफरेंट आपको कलर्स, आपने देखा होगा मैप पे डिफरेंट कलर्स हैं। ये डिफरेंट कलर्स आपको बता रहे हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मिक्स्ड फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जहाँ पे मतलब
जंगलात के बारे में बता रहे हैं आपको कि जहाँ पे ये कोन्स जो ट्रीज होते हैं, जस्ट लाइक दिस शेप, दीज आर द शेप पाइन ट्रीज जो होते हैं ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आ जाते हैं। गॉट दैट? थैंक यू। Next is there are however considerable areas of tropical rainforest in parts of Central Africa and Southeast Asia which produce huge amounts of timber and tropical forest products such as rubber and tropical fruits. So next मैंने बताया है कि जो tropical areas means जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, that are called the tropical rainforest. And in parts of Central Africa and Southeast Asia. हम लोग जो रह रहे हैं, पाकिस्तान is in Southeast Asia. So which produce huge amounts of timber. Timber लकड़ी को कहते हैं, और जो कि ये फर्नीचर वगैरह बनाने में और इस तरह मतलब ये वुडन मटेरियल जो है वो उसमें हम यूज करते हैं। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। अब फॉरेस्ट से आपको क्या मिल रहा है? फॉरेस्ट से आपको मिल रहा है दैट इज रबर, जो कि आप लोग ये टायर्स वगैरह के रबर हैं, लेटर यूज करते हैं। और ट्रॉपिकल फ्रूट्स मींस कि आपको फूड भी मिल रही है उन फॉरेस्ट से, और उन फॉरेस्ट से आप डिफरेंट चीजें भी जो है वो बना सकते हैं। अब यही जो वुड है आप इसको पेंसिल्स में, टेबल, चेयर आप इनमें यूज कर रहे हो। इन अदर कंट्रीज good farm crops are produced in the valleys of great rivers. और दूसरे कंट्रीज में ऐसा है कि उनमें जो ये फसलें जो उगाई जाती हैं उनमें जो दरियाओं के दरमियान में जो जगह है दैट इज कॉल्ड वैली, वो उन इलाकों में उगाई जाती हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल द नाइल, द टिग्रिस, यूफ्रेट्स एंड इंडस एंड इन अदर प्लेसेस बाय इरिगेशन। और वो फसलें कैसे उगाई जाती हैं? वो फसलें सिराब मतलब पानी उनको प्रोवाइड किया जाता है, और वो पानी उन्हें कैसे दिया जाता है फसलों को? ये जो प्रॉपर कैनाल सिस्टम होता है दरियाओं से, जिनसे वो फसलों को सिराब किया जाता है, और वो पानी वो उन दरियाओं से आता है, क्योंकि वो दो दरियाओं के दरमियान में जो वैली एरियाज होते हैं उनमें वो इरिगेशन करते हैं, उनमें वो अपनी फसलें काश्तकारी वगैरह करते हैं ताकि उनको वो इजीली फूड ग्रो कर सकें। So that is all about the today's lecture. I am going to have the quick review about it. First of all, we discussed about the Muslim world. कि मुस्लिम वर्ल्ड क्या है? मुस्लिम वर्ल्ड वो जिन कंट्रीज को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है। आप ये ग्लोब आप ये देखिए, आपकी बुक में परसेंटेज बार बनाया हुआ है पेज नंबर 1 पे, दैट इज बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर्स। मीन्स कि यहाँ सबसे कम जो है बुद्धिस्ट, देन हिंदूज, देन मुस्लिम्स उससे ज्यादा है, एंड देन क्रिश्चियन। इस्लाम इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। सो इसके अलावा फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया गया, जो कि आ जाते हैं माउंटेन रेंजेस, हिल्स आ जाती हैं, जिनमें सीज, रिवर्स आ जाते हैं, वेजिटेशन आ जाती है, फॉरेस्ट आ जाते हैं। That all comes into the physical features of the map. Then there shows the political features, political maps of the Muslim world, जिसमें आप इस मैप में देखिए कि ग्रीन कलर में शो किया हुआ है मुस्लिम कंट्रीज को, ताकि आप लोगों को, जैसे कि अब यहाँ देखिए पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, देन इजिप्ट, लिबिया, मोरक्को, these are the Muslim countries। और नेक्स्ट पेज पे वेजिटेशन के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन कुदरती तौर पे जहाँ पे ये मौजूद हैं वो है कॉनिफरस फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन जहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं, these are the tropical फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, मैदानी इलाकों के बारे में भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ इन मैप में बताया गया कि कहाँ कहाँ मैदानी इलाके हैं, कहाँ कहाँ जंगलात हैं, और कहाँ कहाँ सहरा हैं, डेजर्ट्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ देयर एनी क्वेश्चन दे डू आस्क। Is there any question? Okay, thank you very much. Now that is your homework. You have to learn
handouts will be provided to you through WhatsApp or are available in school's account office. Yes, जी प्लीज। बेटे क्या नहीं नजर आ रहा? ओवर the points in the graph. ये points okay. You're welcome बेटे, thank you very much. Is there any other question? No? No ma'am. Thank you. Okay, Allah Hafiz. Take care. Stay blessed. और जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको बेटे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज द नोट्स हैंडआउट्स आर अवेलेबल इन द स्कूल्स अकाउंट ऑफिस। यू कैन कम हियर एंड देन यू कैन परचेज इट फ्रॉम स्कूल। और सेकेंडली दीज आर आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड on WhatsApp. Got it?